this is my perspective to see data. Like basically, whenever you start solving a data science problem, you basically ask four questions. First is what is your data, right? Then you work around that data, like how you will engineer that data, like how you will clean it, and you see around data, you see various algorithm to do that. Also, before that data cleaning and with pre-processing, you have to learn every bit of that thing. First thing you will solve, like they will ask about every step, each of step, how you are doing it and why it is required to do this kind of stuff. Then then you will start moving, like you will see visualization and everything, like you will know which kind of problem it is, whether it is classification or linear regression, or which kind of problem you are going to solve. Basically, you will get a simple insight. Then you have to think about which model you have to select, right? You have basically reached to second step after doing diagnosis of your data. You ask simple question, which kind of algorithm you are going to use. For that, you have to see uh, prerequisite of every models and every algorithm, right? For that, you can take help of various, like I would say, for placement perspective, you go through whole process of data science project, like start working with data, then select two or three algorithm to apply on it, and choose various problem like classification problem, linear regression problem, or maybe you can use like if someone is interested in deep learning kind of stuff, you can work on image data kind of things also. Next step after selecting model is like how you are measuring your accuracy and all these things, because in your interview they will mostly asking about your performance of the model, means how much percentage you got, and what are the performance metrics you have used. This question will be must, like they will ask what are the success criteria of your project, right? In terms like some of our colleague write in very vague terms, like we have increased the productivity, we have did this, but for as a data scientist, you have to show everything in numbers, right? And very discrete type of thing, like you have to say this success metric you have used, and uh, this is the accuracy in terms of numbers, 86%, 70. And after that, they will you should have clear vision about recall, precision, and all those things, right? And after, like suppose you set a benchmark, you have selected the model, and you set the benchmark, like you have getting 70% of accuracy or 60% of recall, like that. Then real real data science work start, that how you are going to improve. Like for that, we say see hyperparameter tuning. For all these things, you research or study around these things, like then you see before hyperparameter tuning, you should learn about success metrics. Then after you start learning about hyperparameter tuning on all these things, after getting required accuracy, because you have some kind of aim, right? If I am going to solve this problem, this should be our aim. Like we we make a concept note for that, like what are the time period, how much accuracy, and what we want. We should be clear before starting, after visualizing our data, right? For after that, we can say like we have implemented these things, and our project is about to like at end. We can, so whenever you are preparing for data science, always remember these four steps and work around these four steps. You will get numerous algorithms and various methods around each steps. That's all. Definitely, definitely. So moving on to the next question. Uh, as you know, like these times, like these COVID times have been very tough for everyone and all, and everyone has been at homes and stuff. So how should one deal with the stress of this placement season? My Trishit, could you repeat again?
Yes, yes, yes. Sorry. I was saying, like, as during these COVID times, everyone is at home, and it has been a difficult time for everyone. So, how, according to you, should one deal with the stress of the placement season? Why you wanna answer? I mean, ये तो बस व्हाट कैन आई से, जस्ट डोंट वरी, मतलब बीच बीच में थोड़ा गैप ले लिया करो. इट्स नॉट लाइक हमेशा अपने आप को पुश ही करते रहने की अरे यार मेरे साथ वाले का इतना हो गया है. मतलब ये तो एकदम जनरल सी बात है हर फील्ड के लिए कि एकदम पुश नहीं करना है. थोड़ा जैसे ठीक है आज नहीं मन हो रहा है, थोड़ा 2 घंटे ब्रेक ले लिया, थोड़ा स्ट्रेस कम किया, बाकी फ्रेंड से बात करो. मतलब मैं तो ऐसे डील करती थी, मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी. और हमारे टाइम एकदम न्यू था सब कुछ, लेकिन हो जाता है मैनेज थोड़े टाइम में. एक दो मतलब जब 3-4 कंपनीज के टेस्ट दोगे तो उसके बाद खुद ही थोड़ा सा लगने लगता है कि इतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, चिल है. देखो, प्रेशर इज ऑलवेज, अभी प्रेशर पे काम कर ले कि हम डे वन में डे टू और दूसरा रहता है कि हमको प्लेसमेंट लेना है. तो एक है कि क्राइटेरिया ऑफ व्हाटएवर जॉब इज, लेकिन वो बहुत टाइम के लिए होता है. जैसे कि मैं एक से बहुत सारा एग्जांपल है कि स्टार्टिंग जॉब के लिए वो मैच ही नहीं, keep applying again in just months or 2 months. I would say they're applying again, but you should have a longer vision for which you want to get in, right? तो आप बकाहट का चीज नहीं कि अभी ही लेना है. जैसे for one of my friend, he was telling you see a lot of placement, right? And he actually didn't sit for years, but in February he started worrying about all these things that I should settle before getting like be devoted to the preparation or maybe one year to do the job. March is and he is in ICL and he is better package than many peers who got his jobs in day one or two and day. So, my point is you should not worry about peer pressure. If you are wearing a big, इन सभी का एग्जाम्पल तुम्हारे जीवन में होना चाहिए. guys प्लेसमेंट इन मई, राइट? मई में भी हुआ है ना किसी का, मई में उसके बाद हम ही का बैच का तो हो जाना है. कब लेना है कि हमको जल्दी से लेना है, उसके लिए तुमको तो ऑनेस्ट रहो अपने पे. प्लेसमेंट का तैयारी तो शुरू से नहीं, इन लेवल का मतलब सबसे जिसको बहुत पहले तैयारी कर रहा है. क्योंकि किसी के लिए होता है ना कि कम टाइम में भी हो जाता है. तो हर एक लोग का कैपेबिलिटी और लक फैक्टर भी बहुत रहता है प्लेसमेंट में. हम कहेंगे कि तैयारी वाली तो सब चीज ठीक है, बाकी लक फैक्टर बहुत जो कि तुम्हारे पास कंट्रोल में नहीं है ना. तो भाई जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो तुमसे करो, हो जाना है तो कर ले. तुम्हारा भाई इसको बस इस रहता है कि अरे स्लॉट में हो जाए, स्लॉट 2 में हो जाए, और इन चीज ना भाई तो तुम्हारा क्या ही बोलना. थोड़ा पेशेंस रखो. तुम्हारे तुम ऑलरेडी है भाई. तुम्हारे पास ऑफ कैंपस का भी, जैसे ऑफ कैंपस के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत. अभी हम कंपनी में जाते मतलब अलग ही नजर से देखते हैं लोग, जैसे अरे से तो तुम ऑलरेडी प्रिविलेज हो. हम लोग बोले अभी हम प्रिविलेज होकर भी तुम टेंशन ले रहे हो, तो फिर वो अलग चीज. और बाकी घर में रह के, जैसे घर पे रह के ये अगर ग्रुप बना लो, जैसे मेरा ग्रुप होता है यार, अभी नहीं है ग्रुप है इसमें 100 लोग हैं, तो उसमें जनरल बात होता है, लेकिन उसमें कभी कभी पॉलिटिकल हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है. लेकिन हम लोग प्राइवेट
ये जो ये जैसे दो है मैं चिल आउट करते हैं टेस्ट के टाइम में भी, तो वो अलग इन्वायरमेंट टुगेदर और बात करते हैं उस क्लोज ग्रुप। ऐसा नहीं है कि बहुत दोस्ती है, 5-6 भैया मोहित का भी क्लोज ग्रुप बन जाएगी कौन कौन। तो मेरा भी है, सबका रहता है क्लोज ग्रुप। तो क्लोज ग्रुप के इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए तुम्हारा, तो दोस्त है ही है आज पे। इस तरह से तुम टेंशन तो नहीं लो। कह रहे अब देखो हम बता दिए किस चीज के लिए तुम टेंशन ले रहे हो, वो बहुत ही बेकार चीज है। बिल्कुल भैया। So the next question that we have here is कि जैसे प्लेसमेंट टेस्ट हमारे लाइक शुरू हो जाएंगे अभी सीनियर्स के लिए, तो फिर उसमें like what type of questions are asked in those placement tests, and like if there are any coding questions that are asked, so what is the level of them in the test for the data science profile particularly? मोस्टली जो भी कंपनीज आती हैं वो डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट में टेस्ट में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो कोडिंग पूछती हैं पहली बात तो, और जो कंपनीज कोडिंग पूछती है जैसे मेरी कंपनी है वो कोडिंग पूछती है। पाइथन में 3 क्वेश्चंस आए थे उसमें, वो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, मतलब कुछ भी टफ नहीं होता है। तो मेन टेस्ट के लिए एप्टीट्यूड है, वो तो होता ही है सब फील्ड। उसके बाद डेटा पाइथन के बेसिक क्वेश्चंस, और अगर एमएल एल्गोरिदम जहाँ तक कुछ कंपनीज पूछती हैं तो वो इजी होता है, मतलब बहुत आगे। जैसे अभी भैया ने बताया था, जैसे बेसिक रिग्रेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन, एक्यूरेसी मैट्रिक्स, इन सब पे कुछ इजी क्वेश्चन ही होते हैं। आगे की जो एडवांस एल्गोरिदम्स है उन सब पे क्वेश्चंस नहीं होते, एक्सेप्शन 1-2 कंपनीज ही होंगी, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। And SQL या फिर इस इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस? डेटा साइंस के लिए तो सीक्वल में जहां तक मुझे याद है नहीं पूछते हैं। ओयो पूछती है, रुपिक पूछती है, बट दीज प्रोफाइल्स आर बिजनेस एनालिस्ट, तो डेटा साइंस के लिए तो नहीं पूछती हैं। We have a question from Ayush, I guess. Ayush? Yeah, so as you mentioned for data science that the coding questions are not of that high level. So मतलब जैसे जो वेबसाइट्स होती है जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाते, तो उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए मतलब इस टाइम पे एटलीस्ट? See, I was in data science, you have to prepare if to get into data science, not in data analyst. Data analyst probably entirely different. Okay, but if you want to get into data science, you should prepare for AD, and you should have your project of it, and you have understanding, right? You should continue your coding skill. You should know coding skill for data science too. Like you not see that coding will be asked and because the you high coding skill data science also like most question see in data science in coding terms is like Sprinkler पूछते हैं ना भैया, सबसे हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं Sprinkler, और उसके बाद फिर तुमको इजी क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब भी तुम कर पाओगे 1 घंटे में तीनों क्वेश्चन कर रहे हो ना, might not listed. If you are doing those 3 questions in half an hour, then you will be shortlisted, right? तो तुम अगर डेटा साइंस में ना तो तुम्हारे पास थोड़ा सा हार्ड वर्क नहीं कह सकते, मतलब दो प्रोफाइल का होना चाहिए, एसडीबी आना चाहिए, और ये मशीन लर्निंग हो गया है तुम्हारा बढ़िया प्रोजेक्ट। मशीन लर्निंग का पूरा लाइफ साइकिल आना चाहिए जो अभी हम पहले बता रहे थे, और बाकी एक है तो तब तो ठीक ही है। और एनालिस्ट के लिए तो तुमको कोडिंग का टेंशन ही नहीं लेना है। अगर तुम कोडिंग से बचना चाहते हो तो बस एनालिस्ट के लिए अप्लाई करो, उसमें बस पूछती है कंपनी हल्का फुल्का। एसक्यूएल के लिए स्ट्रिक्टली बोलेंगे, डब्ल्यूजी स्कूल करके एक वेबसाइट है, वो एक दिन के अंदर हो गया, एक दिन क्या 2-3 घंटे में तुम सर्च करो में, उससे ज्यादा एसक्यूएल मत करना, उसी में लगाना जो करना, उसमें एसक्यूएल में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। which I Right. So, hello. Hi, Ayush. Do you have
anything else to say? No, that's Okay. So one last question before I open the floor for everyone in the audience. So मोहित भैया, अनीश भैया, माहिदी, आपने यहाँ के लाइक कंपनीज का वर्क कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज. बहुत कम बोल गए. शुरू करो अनीश. भैया मतलब अभी तो मेरे कंपनी का वर्क कल्चर बहुत ही टाटा का कोई भी डिवीजन में बहुत ही लाइट रहता है अभी तो. और ऊपर से स्टार्टिंग जो अभी स्टार्ट करते हैं उसके लिए तो हम लोग कंपनी में कुछ काम ऐसे इन जनरल कोई भी प्रोजेक्ट है ना तो उसमें सबऑर्डिनेट के रोल में रहते हैं. जैसे कि जो 3 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं ना उनके साथ हम काम करते हैं. तो वो लोग हम लोग को लोड बहुत ही कम देते हैं. अभी तो कुछ दिन में ट्रेनिंग होता है, हर एक वीक में 2 दिन ट्रेनिंग होती है. जैसे ट्रेनिंग के दिन ही सबसे ज्यादा लोड होता है कि 4 घंटा बैठना पड़ता है. और ऐसे ऐसे मतलब अभी तो जैसे 11 बजे स्टैंड अप मीटिंग होता है, वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है. उसके बाद से फिर बीच में प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ पूछ लिए, ऐसे कुछ मतलब चिल है मेरा तो. यहाँ भी हमको लगता है कि हम सबसे ज्यादा देर काम किए होंगे अभी 3 महीना में. तो हम एक दिन एनाकोंडा इंस्टॉल करे तो 4 घंटा लग गया था बस. बस यही है. तो मुझे अभी ज्वाइन किए 2 महीने हुए हैं और वर्क फ्रॉम होम है तो बहुत ज्यादा करते तो समझ नहीं आ रहा है. और सेम जैसे उसने बोला हमारे में उस शैडो प्रोजेक्ट करके होता है. तो कोई 1 साल 2 साल पुराने डेटा साइंटिस्ट है उनके अंडर में हमको काम करना होता है. तो डोमेन्स होती है डेटा साइंस में अलग. तो जैसे आई एम इन एनएलपी डोमेन, तो अभी वो उस डोमेन के बारे में हम लोग को सिखा रहे हैं. मतलब काफी कम काम है. ऐसे एक दिन पूरे पैकेजेस इंस्टॉल करवाए. फिर अभी पूरा बस रिसर्च वाला काम है. मतलब पढ़ना है, थोड़े प्रोजेक्ट्स मतलब थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं वो लोग. लोड कम है और वर्क कल्चर में और जैसे काफी वो है, फ्रीडम है. अगर जैसे मान लो मुझे इस डोमेन में मजा नहीं आ रहा है, उस टाइम में मुझे चेंज करना है तो उसके लिए भी ऑप्शंस है कि चेंज कर सकती हूँ डेटा साइंस में. तो वर्क कल्चर ओवरऑल अच्छा है. माइक लैग हो रहा है शायद से. लैग हो रहा है. मेरे को सही आ रहा था. अनीश आई थिंक तुम्हारा नेट खराब है. चलो इतना ही. मोहित भैया. हाँ, मैं ये एक्सेल में भी मैं भी ऐसा एनएलपी डोमेन में हूँ. अपनी डिजिटल R&D टीम है. तो अपना काम क्या होता है बेसिकली, अपने पास क्लाइंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, कुछ डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एंड सम अदर थिंग्स. तो करंटली अपना जितना काम होता है मोस्टली AWS पे ही चलता है. और उसी को क्या बोलते हैं, लेटेस्ट सपोज उसको सीखने में बस खाली थोड़ा बहुत टाइम लगता है. अपने को जो लगता है कि एक प्रोजेक्ट अपन ने स्टार्टिंग किया तो कि अपने को शुरुआत में प्रोजेक्ट पकड़ा दिया था. शुरू करना है अपने को POC. ऐसा कंपनीज पहले क्लाइंट्स पहले कुछ POCs करने को बोलते हैं कि लाइक 2-3 वीक्स POC होता है. उसके बाद फिर क्या बोलते हैं आगे प्रॉपर प्रोजेक्ट शुरू होता है. तो POCs बनाने में मतलब मज़ेदार होता है कि तुमको अगर ऐसा कोड करते हो तो तुमको बड़ा मजा आएगा कि तुमको एक से डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स अपने कभी इंजेस्ट करने थे. तो उन सब के लिए एक प्रॉपर मॉडल बनाया. अभी उसको एज अपन कि बाकी लोग यूज़ कर सकें उन मॉडल्स को पब्लिश कर रहे हैं अपन अभी. तो इस टाइप की चीज़ें हैं. तो और काम क्या बोलते हैं बहुत चला मतलब तुम पूरे दिन मज़े करो. जब तुमको मज़ा आ रहा है कि चलो अब काम करते हैं तो उस काम को निपटा डालो. लेकिन हाँ कि जब तुमको मज़ा आता है तो अपन ऐसा भी हुआ है कि मतलब अपन 6-6 घंटे भी बैठे रहे हैं साथ साथ, चलो करते हैं इसको, खत्म ही कर रहे हैं ऐसा. तो इस टाइप की चीज़ें. Right. So I am done with my set of questions, and the floor is open to everyone in attendance to ask any doubts. Hello.
Hello, am I audible? Yes, yes. Bhaiya, I want to ask that how much difficult to if anyone not getting internship for placement? How much? Like you have not done internship, right? Yeah, I'm not getting on campus internship right now. In which year you are, Ishu? I'm in third year. क्यों टेंशन ले रहा है? नहीं टेंशन नहीं ले रहा बट पूछना चाह रहा था. अरे देखो सबसे पहले अपना फील्ड जो है लेटर सपोज कि हर कोई 2-3 प्रोफाइल को लेके चलता है कि आइदर डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट इस टाइप से या फिर प्रोडक्ट एनालिस्ट नहीं तो प्रोडक्ट मैनेजर इस टाइप से लोग ऐसा 1-2 प्रोफाइल्स लेके चलते हैं स्टार्टिंग से और फिर कोई एक इंटर्नशिप इस तरह से करते हैं कि अगर इंटर्नशिप में वो काम किया भी नहीं है जो तुम अपने उसमें लिख रहे हो ये रिज्यूमे में फिर भी उसको घुसाना ज़बरदस्ती ये होता है, ये जनरली होता है कि ताकि तुमको उस प्रोफाइल के लिए जो तुम पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जा रहे हो फॉर एग्जांपल डेटा साइंस के लिए तुमने अगर काम एनालिस्ट का किया बट स्टिल तुमको समझ में आ रहा है कि फॉर द इंटरव्यू पर्पसेस कि यहाँ पे इस टाइप का काम को मैं मशीन लर्निंग से भी कर सकता था भले तुमने नहीं किया है बट स्टिल तुम उसको प्रिपेयर करो अपने एंड से पूरा उसको लिखो बट उसको बस तुमको तुम्हारे दिमाग में सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि तुम अगर कोई इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कुछ भी कभी तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट और इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो इंटर्नशिप मिलना क्या बोलते हैं ठीक है चल रहता है लोग ऐसा भी होता है कि लोगों ने इंटर्नशिप करी ही नहीं है दे हैव जस्ट उनके पास जाली सर्टिफिकेट थे उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्लेसमेंट उठाए तो बट स्टिल की इंटर्नशिप का फ़ायदा ही हो रहता है कि तुम जब काम करते हो कुछ भी तो तुमको जब समझ में आता है कि एक्चुअली तुम बस इम्प्लीमेंट करना सीखते हो चीज़ों को तुम पढ़ रहे हो और कुछ नहीं तो इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो यार मतलब कि मिल जाएगी आराम से तुम 1-2 महीना अगर बैठ के ट्राई करोगे अच्छे से कि जितने लोगों का कनेक्शन को जानते हो सबसे पूछो किसी ना किसी को कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंटर्नशिप हमेशा अवेलेबल है और लिटरली कि अपने कनेक्शन जो भी हैं तुम्हारे सीनियर्स हैं उन सबसे बात करो और मिलेगी आराम से इंटर्नशिप ट्राई करोगे तो Okay, thank you. Any other questions? सब क्लियर है लोगों को I have a doubt, like from my for myself. It was something like as आप तीनों का ही like all three of you are from non-circuital branches, so I am guessing that you might have been asked this question in your interviews or thought that why data science profile and not your core engineering profile. So how would you tackle questions like that? माही अनीश I never got such questions. कभी किसी ने नहीं पूछा. अरे अभी तो ये ऑब्वियस हो गया है उन लोगों को इंटरव्यूअर को लेकिन अगर वो पूछते हैं तो फिर ये तुम बोलना कि we have like our college or our institution have provided us an opportunity to learn about computer science course and many other course as optional subject. So while attending those courses, I got interest into these thing. और ये भी mention कर दो या फिर कि robotics में हम थे तो हमको वहाँ पे थोड़ा बहुत use किए थे machine learning ये सब तो फिर हमको इधर interest हो गया इस तरह से. पहले हम लोग का होता था ना भैया जिसमें 10,000 मिलता था कौन सा DIH प्रोजेक्ट उसमें रोबोटिक्स के अंदर हम फर्स्ट ईयर में हाँ फर्स्ट ईयर में किए थे रोबोटिक्स क्लब के अंदर उसमें 10,000 फ्री का तो उस तरह से हम बोल सकते हो कि हाँ कुछ तो भी लिंक होना चाहिए एक्चुअली है ना इंटरव्यू में भी स्टोरी टेलिंग टाइप से बोलो कि हाँ तुम्हारे लिंक होना चाहिए कुछ भी जैसे हम बोले कि मेरा तुम क्यों आए डेटा साइंस में तो हम बोले फर्स्ट ईयर में रोबोटिक्स क्लब में थे आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वन वर्क इन DIH तो वहाँ कर लिए उसके बाद इंटर्न कर लिए डेटा साइंस के अंदर उसके बाद प्लेसमेंट ले लिए यू हैव योर लिंक राइट
तो ये स्टोरी टाइप से बोलो, कैसे भी कनेक्शन, तो तुम्हारे पास सबका अपना पर्सनल कनेक्शन होगा ना, तो ये चीज तुम बोलो, कन्विंसिंग हो जाएगा थोड़ा। बोल दो एंड्रू वेंजी देख लिया था गलती से, पसंद आ गया। अरे हाँ मन। Hi, it's Aman from mining. My question is that how much the courses we have done online from other resources from the Coursera or Udemy are important. Like I have courses or a project, so which I should fill in the add in a resume, courses or the project. I have already add 2 projects of the data science. Then should I add a third project or courses certification? If I would like to answer this, I will say I will always prefer to add a project over the courses which I have learned, क्योंकि वो तुमको ऐसा तुम जो कीवर्ड्स लिखोगे इस प्रोजेक्ट में वो तुमने कोर्सेज में पढ़े होंगे और यू विल बी एबल टू, मतलब कि उसका तुम इम्प्लीमेंटेशन दिखा पाओगे सारे कोर्सेज का जो भी तुमने पढ़ा है। भले ही तुमने कोई कैसा प्रोजेक्ट है जो पर्टिकुलर कोर्स में, क्योंकि कोर्सेज में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो कई बार ये होता है कि लोग वो सेम प्रोजेक्ट्स ही जो उन्होंने कोर्सेज में करे उन्हीं को एज अ प्रोजेक्ट वहाँ पे लिख देते हैं। तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि लाइक कोर्सेज का ऐसा है कि बस चेरी ऑन द टॉप वाली चीज़ है, बट तुमको उसके बाद उसके पहले का पूरा बेस वो तुम ऐसे अपने प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप से बनाते हो। और कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसको तुम अपने लेट अस सपोज कि उसको एज अ प्रोजेक्ट नहीं लिख पा रहे हो, तब तुम एक आध कोर्स, फॉर एग्जांपल अगर तुमने AWS के बारे में कुछ पढ़ा है बट तुमने कभी इम्प्लीमेंट नहीं करा है, तो उसको एज अ कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन में सेक्शन में दिखा सकते हो। बट पर्सनली मैंने कभी आर्ट नहीं करा है, इतने प्रोजेक्ट्स थे भाई लिखने को तो या Yeah. I have the project. Mainly, what I am doing. I add a 2 computer vision projects, and after that, there is a place. So I have choice that I can add a ML project or I can add some courses. prefer projects, उसी में try to incorporate those learnings in your courses and उसी में story building बना के you will have to say everything. One more question, last. That I have done all the projects mostly in the computer vision. So how much I have to pay attention on the ML? I don't have much a strong background on the ML, but a little bit much in the computer vision side. So what should I do? How to prepare for the interview? Yeah, take 2-3 months. 2 months में हमारा सब चीज़ें परफेक्ट हो सकती हैं ML के करस्पॉन्डिंग अगर बात करो तो। ML इतना टाइम नहीं इतना टाइम नहीं लेता है। अगर तुमने मैं ऐसा साथ में SDE के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो हाँ तो ठीक है, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है कि तुम अपना मल्टीपल जगह एक साथ ठीक है, मतलब हाँ करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बट स्टिल कि ट्राई टू लाइक एक डायरेक्शन के बारे में सोच लो कि SD से करना है तो SD प्रेफर करो हर जगह हर टाइम, बट ठीक है, बट स्टिल पीपल यूज्ड टू लाइक वो मल्टीपल चीज़ें में करते हैं, तो और उसके बाद इस चीज़ में Hello, sir. Hello. Am I audible? Hello, sir. या श्रुति यार Yes, sir. So, sir, ML के कौन से एरिया में हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जिससे बेटर, मतलब थोड़ा ईज हो इंटरव्यू टाइम में? जैसा अनीश ने बताया भी अभी कि जो जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं सबसे पहले तो तुम वही पढ़ते हो, उसके बाद उन एल्गोरिदम्स की पहले कुछ असम्पशंस होती हैं, तो पीपल यूज्ड टू लाइक आस्क दिस अ लॉट कि इसकी क्या असम्पशन है। फॉर एग्जांपल कि लीनियर रिग्रेशन में कुछ एक असम्पशन होती है कि डेटा शुड बी लीनियर, ऐसा करके कई सारी असम्पशन होती हैं। और मतलब कि ऊपर से देखें तो बहुत सारी चीज़ें सिंपल है, बट तुमको अंदर में जाके पता चलेगा कि अच्छा इसमें बहुत सारी असम्पशन होती हैं
उसके आउटकम्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें ऐसे एल्गोरिदम होती हैं जो ऑटोमेटिकली कई सारी चीज़ें हैंडल कर पाती हैं। फॉर एग्जांपल मिसिंग फीचर या इम्बैलेंस, डेटा इम्बैलेंस, इनको हैंडल कर लेती हैं। कुछ एल्गोरिदम होती हैं जो नहीं कर पाती हैं। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने को हमेशा याद रखनी होती है। कोई भी एल्गोरिदम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में एक एक चीज़ अपन क्या बोलते हैं कि उसमें अगर इम्बैलेंस डेटा सेट आया तो वो उसको हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर उसमें लेट अस सपोज की अनीश भी ने बताया कि हम फीचर प्रोसेसिंग करते हैं पहले कि करेक्टली क्या बोलते हैं उसको, वर्ड को, फीचर को एक पर्टिकुलर रेंज में लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो स्टैंडर्डाइजेशन, सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑल। तो हाँ, ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और कहाँ कहाँ ज़रूरत है, क्यों कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो क्यों ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काम आते हैं अपने को। थैंक यू। और एक सजेशन और है कि जैसे जितना भी लोग फोकस्ड हो कि हमको डेटा साइंस में ही जाना है, तो वो एक बुक तो एटलीस्ट तो अपने पास रखो। उससे यह पता चलता है ना कि पूरा लाइफ साइकिल, जैसे जब भी हम लोग वीडियो देखते हैं तो टोटल वीडियो रहेगा, तो रिवीजन ये सब के लिए इजी होता है जब हमारे पास कोई एक बढ़िया सा एमएल का बुक हो। सर कैन यू सजेस्ट सम बुक नेम? एक बुक तो है, सेबेस्टियन रेशेका करके है। सबके पास तो था मेरे बैच के टाइम में। सर आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, सेबेस्टियन रेशेका करके है। नाम चैट बॉक्स में लिख देते हैं। और बुक्स भी ऐसा नहीं कि हर कोई बुक से लिखता है। मैंने स्टार्टिंग में खाली एक पाइथन के लिए बुक पढ़ी थी, पाइथन क्रैश कोर्स करके है, जब क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद जो पूरा मशीन लर्निंग स्टार्टिंग में एक एंड्रयू एनजी का कोर्स करा था, तो सबसे पहले सब लोग वही करते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। और उसके बाद आई थिंक मैंने तो कोई कोर्स नहीं किया। आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब। एक चैनल पकड़ लिया, उस पर सब कुछ मिल गया, उससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। Yes, Rohan, go ahead. Is there any specific like good resource for aptitude, like for practicing aptitude questions? डेटा साइंस के लिए एप्टीट्यूड ठीक है, थोड़ा बहुत पूछते हैं। तो कोई भी कैट की बुक बोलते हैं सब लोग। तो मैंने तो 3 महीने उसको ट्राई किया था पढ़ने का, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। हाँ, टाइम के मॉड्यूल्स मोर देन इनफ है, मतलब उतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक प्रेपली करके एक वेबसाइट है, उस पे भी मतलब अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं, वो सही है। और कुछ परीक्षा एक है, उसमें टेस्ट दे सकते हो, उसकी क्वेश्चंस उसके बहुत इजी होते हैं, बट कुछ प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं उन्होंने, वो ठीक है, वो दे सकते हैं। सर जो डेटा साइंस का टेस्ट होगा सबसे पहले, उसमें कितना क्वांट आएगा, कितना एमएल का पार्ट आएगा, बाकी क्या वर्बल रीजनिंग वगैरह आएगा, वो जरा बता दीजिए। सबसे पहले तो डेटा साइंस की पहली बात तो पर्टिकुलर डेटा साइंस की कंपनीज बहुत कम है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत क्वांट वगैरह होता है। और उसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस, ये मतलब किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। और एसक्यूएल भी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, बस ऐसा है। और एसक्यूएल के लिए भी आई थिंक नीश ने भी सोच बताया था अपना W3 स्कूल का, तो उधर से काम हो जाता है सारा अपना।
और अपना क्वांट के लिए मैंने बताया जैसे कि टाइम के मॉड्यूल्स एंड फ्यू वेबसाइट्स परीक्षा है ना। और जो अपना डेटा साइंस है फिर तो उसके लिए तो अपन साइड बाय साइड प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो एमएल की एल्गोरिथम्स एंड ऑल उनके असम्पशंस, तो ये सारी चीज़ें मोस्टली उसमें आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना कि जैसे डेटा साइंस में कोडिंग पार्ट ज़्यादा मेजर पूछा जाएगा और डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस प्रोफाइल के लिए थोड़ा कम पूछा जाएगा, ऐसा कुछ है क्या स्पेसिफिक? एनालिस्ट में तो पूछते ही नहीं है, डेटा साइंस में ही कोडिंग आता है हल्का फुल्का। मतलब एनालिस्ट एनालिस्ट में के लिए तुमको और डेटा साइंस के लिए भी क्या कंपलसरी है कि जरूरी है कि वो पूछेगा ही पूछेगा कोडिंग वगैरह? एक सिंपल सी चीज हम बोलते हैं, जैसे कि तुमको अगर डेटा साइंस के लिए एम कर रहे हो ना, तो तुमको साथ साथ कोडिंग भी करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि कोडिंग डेटा साइंस की मैक्सिमम कंपनी तो कभी कभी नहीं पूछती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जेडोस एसोसिएट भी पूछी थी। इजी क्वेश्चन रहता है, हम मानते हैं कि इजी क्वेश्चन देते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ वाले होते हैं जो उनका स्किल डेटा साइंस ये कोडिंग का स्किल अच्छा होता है, वो लोग नहीं भी जाना हो लेकिन वो लोग क्लियर कर लेते हैं टेस्ट। और जो जिनको जाना होता है वो कर ही नहीं पाते, तो इंटरव्यू में ही जाता है। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है डेटा साइंस में इंटरव्यू देने का कि तुम्हारे रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। रिज्यूमे बेसिस पे बहुत ज्यादा शॉर्टलिस्ट आता है। रिज्यूमे तुम्हारा मतलब प्रोजेक्ट का, अगर प्रोजेक्ट अच्छा हो तो वो लोग शॉर्टलिस्ट डायरेक्ट करते हैं। बहुत सारी कंपनी तो मतलब 4-5 कंपनी है जो तुमको रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू लेगी तुम्हें। तो अभी जो भी जैसे प्रोजेक्ट भी डाल रहे हो, अभी तो तुम लोग डाले होगे, अभी एक्स्ट्रा उसमें से 2 या 3 यूज कर रहे हो। तीसरा चीज है ना कि तुम लोग बस एक ही पेज का होना चाहिए ना, कि 1.5 पेज बनाया है, 1.5-2 पेज कोई कर दिया है। बहुत ज्यादा भरना मत, एक ही पेज इनफ है। सर एक्चुअली मेरा 1.5 पेज हो गया है, तो नहीं, उसको कट शॉर्ट करके एक ही पेज करो, कैसे भी करके। क्या है कि प्रोजेक्ट जो है ना सर, उसको मैंने डिटेल में लिखा है, उसमें मतलब रिजल्ट्स वगैरह भी डाल दिए कि हाँ रिजल्ट में क्या है नहीं है, तो वो सारे पूरा इनपुट, तो वो सब कम कर दीजिए। उसको अगर एडिट कर सकते हो ना, प्रोजेक्ट शायद एडिट होता है ना बाद में भैया, अगर एडिट कर सकते हो, हाँ अगर एडिट कर सकते हो तो कुछ छोटा से लिखो। डिटेल में समझाना नहीं है, डिटेल में समझाना इंटरव्यू के टाइम ना। इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारा कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा, 2 लाइन से ज्यादा में तुम क्या ही लिखोगे, मैक्स 3 लाइन जाएगा। लाइन जाएगा तो मेरे हिसाब से तुम्हारा एक इंटर्न आ जाएगा, 2 प्रोजेक्ट आएगा तुम्हारा। बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में तो तुम लोग ज्यादा किए ही नहीं होगे, घर पे होगे तो 2-3 लाइन उधर है। पेज तो होने जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एक पेज में करो, हम सबसे सजेस्ट करें एक पेज इज ओके। Any other questions? I guess that's all. Okay, let me tell you finally कुछ चीज़ें। को सबसे पहले डेटा साइंस की कंपनीज, अगर हम डेटा साइंस टारगेट कर रहे हैं, मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो मेरा टारगेट खाली डेटा साइंस था। एनालिस्ट वगैरह भी कुछ टाइम तक लगा था कि चलो ऑप्शन रखते हैं, बट उसके बाद छोड़ दिया था सब कुछ। तो अगर तुम टारगेट वो कर रहे हो तो नेसेसरी नहीं है कि यार कैंपस में, पहली बात तो कैंपस में कंपनीज कम आती हैं, उसके बाद डे 1 डे 2 डे 3 सर्किटल सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद जाके अगर सर्किटल से नहीं हो तो उसके बाद फिर बाकी की ब्रांचेस का खासा नंबर जाके आ पाता है। तो पहली बात, ज़रूरी नहीं कि फेज़ 1 में प्लेसमेंट डेटा साइंस में हो या ना हो, क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट डेटा साइंस है। और बाय लक मेरा आई थिंक डे 7 या डे 8 पे आई थिंक ATCS करके कंपनी है, उसमें एज अ डेटा इंजीनियर आई गॉट प्लेस्ड देयर। तो ठीक है, मतलब ऐसा है कि
वो जो सिक्योरिटी के लिए रखते हैं कि मतलब ऐसा नहीं करना किसी को कि नहीं कंपनी में लगा ही नहीं है तो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए जॉब रखो, उसके बाद तुम बाकी पूरा कॉलेज ख़त्म होने से पहले तक तुम पूरा हासिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन फॉर माई सेल्फ कि जब अपना प्लेसमेंट वाला सीन ओवर हो गया तो सबको देखो ऐसा होता है कि लोग चिल कर लेते हैं, चलो जॉब लग गई अब इट्स टाइम टू चिल। तो अगर तुमको सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से तो बस वो चीज़ छोड़ दो, तुमको बस सीखना है तो सीखने के लिए क्या बोलते हैं फिर से कोई इंटर्नशिप अप्लाई करो, कुछ भी करो जो भी तुमको समझ में आता है। तो सेम थिंग आई डिड कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए थी, तो बाय लक एक इंटर्नशिप मेरे सामने आई, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। तो वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट अपने साथ अपने हाथ में था। तो जो पहले इतने टाइम तक दूसरों के असाइनमेंट सॉल्व करे या कुछ प्रोजेक्ट्स खुद से बनाए, तो उन सब की हेल्प से वी बिल्ड समथिंग देयर। और वहाँ से चीज़ें डिफरेंट टाइम ले गई कि वी स्टार्टेड आवर ओन कंपनी देयर। तो अभी वो कंपनी चल भी रही है, तो इट्स वर्किंग। मैं अभी उसमें भी काम कर रहा हूँ। एंड इन द मीन टाइम जुलाई में आई थिंक जून और जुलाई में आई थिंक आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिली ये ई एक्सेल की एन एल पी में एज एन एल पी डेटा साइंटिस्ट देयर वाज अ पोजीशन अवेलेबल। तो आई अप्लाइड देयर। तो और उससे ज़्यादा स्मूथ इंटरव्यू आई थिंक मैं नहीं सोच सकता हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम तक क्या बोलते हैं तुमने सब कुछ करा है, इतने टाइम तक यू लर्न एवरीथिंग, तुमने इतना चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि तुम जब काम करोगे तो तुमको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी छोटी छोटी, और वो तुमको उस इंटरव्यूज़ में इतना हेल्प करने वाली है कि बहुत तुमको कोई चीज़ लगेगी नहीं, तुमको लगेगा कुछ टाइम बाद की इंटरव्यू तो सबसे निकालना सबसे ईजी काम है। अभी जो हमको लगता है कि कितनी बड़ी चीज़ है, तो इट्स लाइक दैट ये ऐसा सीन एक टाइम के बाद आ जाएगा। और तो बस यार कि टाइम है छोटा सा, इसको निकाल दो किसी भी तरीके से, होता है नहीं होता है डजेंट मैटर। और चलो आगे, तो मतलब ये कि बस कि ये डिप्रेस विप्रेस का नहीं करना कुछ भी, कुछ लगता रहेगा कोई ना कोई जॉब तो आई जाएगी हमेशा। और और यार मतलब ये है कि बस अपना टारगेट फिक्स रखना है, अपने को सीखते रहना जो भी अपन सीखना चाह रहे हैं। Thank you so much, Priya, for this words. Anyone has any doubts, or we can, I guess, wind up the meeting if all the doubts are cleared. Uh, Everything is clear. Everything is cleared. Rahul, would you like to take forward from here on? Hello. Yeah. Rahul, you're muted again if you're saying something. Hello, whoever the questions you can ask, and we will end the session in some minutes. I am presenting the e-mementos for the guests. Hello, Hello. am I audible? Yes.
So Yeah, I am presenting. yeah. Hey, Bhagwan. It is for Mohit Bhaiya for hello. Thank you, Bhaiya, for providing us with great insights today. Thanks, Rishit. It is for Mahi Didi. Thank you, Dee, for attending Thank the you. session today and giving us all those insights. And it is for Anish Bhaiya. Sorry for the delay from my side. My laptop is somewhat hanging. Good. So Thank yeah, you, one and all. over to you, Trishit Bhaiya. Yeah, yes. So that was all the time that we had today. I'd like to thank all three of our panelists for providing these insights to everyone attending. I'd also like to thank the audience for attending the session and stay tuned for more sessions like this. Thank you so much. Thank you, everyone. All the best, guys.